discuss the nucleon number, and one more topic is left in this here, that is the isotopes. We are going to discuss isotopes now, and then we will move to the next. Okay, so what are isotopes? Isotopes are the atoms of same element having same proton number but different nucleon number. It means that they are the atoms of same element. Like for example, we are having the atoms of hydrogen. Okay, so the number of these atoms will be like their proton number will be same, but the number of nucleon present in the nucleus will be different. So you can say that the number of neutron will be different and the number of proton will be same. Okay, like hydrogen may have one proton and one neutron. It may be having one proton and two neutron as well. It may be having one proton and no neutron as well. ठीक है, तो isotopes क्या है? Isotopes basically same element के atoms होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है लेकिन न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट होता है. सिंपल इसका मतलब ये होता है कि आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाते हैं. तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे तो एटॉमिक मासेस, जिसे हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं, वो चेंज हो जाएगा. क्योंकि न्यूक्लियन नंबर हमने पढ़ा लास्ट टाइम. न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो जब उसका न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका एटॉमिक मास भी डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको तीन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. एक हाइड्रोजन का दिया हुआ, एक कार्बन का और एक कैल्शियम का. इन तीनों का मैं अभी आपको आइसोटोप्स दिखाऊंगा कि देखो भाई इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन इसका मास नंबर डिफरेंट होता है. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ द आइसोटोप्स फ्रॉम हाइड्रोजन, कार्बन एंड कैल्शियम. इन द फर्स्ट फिगर 1, 2 and 3, you can see these are hydrogen 1, 2 and 3. hydrogen 1, hydrogen 2 and hydrogen 3. okay, they are also known as प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम. लेकिन आप उसको सिंपली हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 से अपने दिमाग में रख सकते हो. लाइक इन हाइड्रोजन 1 you can see in the center, the nucleus of hydrogen 1, you can see only one proton is present but there is no neutron present in its nucleus. What does it mean? It means that its proton number is 1 but its nucleon number is also 1 because there is no neutron present in the center. So only proton is present, one proton is present, so इसका atomic number भी 1 है और atomic mass भी 1 है. Let's see to the second one. ये भी हाइड्रोजन का एटम है, सेम एटम है हाइड्रोजन का, लेकिन इसके सेंटर को अगर आप देखेंगे तो you will find it out कि there is one proton present and one neutron is also present. Okay, so it's proton number 1 and 2, दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट है. तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 1 + 2 = 3. 3 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा. अब इन तीनों में आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है. It means that all of the three have the same protons. Okay, all of these three have the same protons, but when you go toward the neutron, the number of neutron become different. Here is no neutron, here is one neutron, and here are two neutron present. ठीक है, तो दिस इज द हाइड्रोजन आइसोटोप्स. ये तीनों जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है. अब आप आ जाए यहाँ पर सेकंड नंबर पर, ये क्लोरीन है. क्लोरीन का एटम है. ठीक है, क्लोरीन के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने? 17 होते हैं. इनके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो भी 17 होते हैं. तो आप इसको देखें और इसको देखें, दोनों में प्रोटॉन कितने हैं? 17 है. लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन को देखें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 18 है और यहाँ पर न्यूट्रॉन 20 है. Here we have 17 proton, but the number of neutron are 18 here and here as well, and both we are having 20 and 18 number of neutrons. So the mass of this one
17 plus 18 is equal to 35. And the mass of this one, 17 plus 20 is equal to 37. So this is chlorine 35 and this is chlorine 37. They both are the same atoms, but they are isotopes. ये isotopes है. इनके अंदर number of neutron different है. So you can see 18 number, here you have 20 number. Okay, proton here is also 17, here is also 17. Electron here also 17, here also 17, because proton and electron are same. Always proton and electron are same, but neutron may be different. When neutron is different, they can form the isotopes. यहाँ पर isotopes हमारे पास बनते हैं. So ये दोनों जो है ये क्लोरीन के isotopes है. Let's see the third one. These are the isotopes of carbon. 1, 2 and 3. These three are the isotopes of carbon. ये carbon के isotopes है. So see first one here. This is carbon 12. इसे हम carbon 12 कहते हैं because it has 3 protons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 proton. Sorry, it has 6 proton and similarly it has 6 neutron. ये जो प्लस में दिखाई दे रहे हैं आपको प्लस में ये प्रोटॉन है और ये जो आपको पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं ये न्यूट्रॉन है. तो 6 न्यूट्रॉन है यहाँ पर और 6 प्रोटॉन है. इसका मतलब 6 + 6 इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 12 होगा. अब आप इस वाले में आ जाए. प्रोटॉन अगेन आप गिन ले. प्रोटॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 प्रोटॉन अगेन इसके अंदर प्रेजेंट है. लेकिन आप न्यूट्रॉन को गिने तो 4 + 3 7 न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है. तो न्यूट्रॉन 7, प्रोटॉन 6. 7 + 6 इज इक्वल टू 13. तो इसका एटॉमिक मास 13 है. कार्बन सेकंड, कार्बन 13 जिसे हम कहते हैं, इसका एटॉमिक मास 13 होता है बिकॉज इट हैज 7 न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. कार्बन 14. कार्बन 14 में अगेन देख ले प्रोटॉन को 1 और 3 4 and 2 6. 6 प्रोटॉन है इसके अंदर. लेकिन आप न्यूट्रॉन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. इट मींस दैट कार्बन 14 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है. सो 6 + 8 इज इक्वल टू 14. सो यहाँ जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है? ये प्रोटॉन से. और ये जो ऊपर लिखे हुए यहाँ पर ये आपके पास जो है ये मास नंबर है या न्यूक्लियॉन नंबर है. तो आई होप कि आइसोटोप्स में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. क्लियर होंगे आपको आइसोटोप्स. अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप आइसोटोप्स के बारे में पूछ सकते हो. सर जी सर आपने नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं. सर आपने कहा था कि जो है ना अगर हम कोई भी हम एटम लेंगे तो उसमें सारे प्रोटॉन तो सब कुछ सेम होगा. तो सर इसमें तो सब डिफरेंट है. क्या होगा? सर आपने कहा था जैसे हम एक ऑक्सीजन का एटम लेंगे तो उसमें अगर 8 प्रोटॉन है तो वहाँ पर उसमें 8 प्रोटॉन्स ही रहेंगे. तो सर यहाँ पर न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं. न्यूट्रॉन का कोई मसला नहीं. न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं, प्रोटॉन सेम रहेंगे. देखिए जैसे कार्बन, हमने कार्बन लिया, क्लोरीन लिया, हमने हाइड्रोजन लिया, तो हमने देखा ना उसमें प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ. प्रोटॉन सेम थे, तीनों के अंदर प्रोटॉन सेम थे, लेकिन क्या चेंज हो रहा था? न्यूट्रॉन चेंज हो रहा था. सो इसीलिए हम जो पीरियोडिक टेबल बनाते हैं वो हम प्रोटॉन के बेस पे बनाते हैं, न्यूट्रॉन के बेस पे नहीं बनाते, क्योंकि न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है. न्यूट्रॉन चेंज होगा तो फिर आपको डिफरेंट स्पेसेस देनी पड़ेंगी. एनी अदर? क्लियर है सबको? यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट? बेटा हमने आइसोटोप्स के बाद हमने आइसोटोप्स की बात की, ठीक है. और हमने आइसोटोप्स में ये कहा कि आइसोटोप्स जो होते हैं ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होते हैं. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया. उसके बाद मैंने फिगर्स दिखाए आप लोगों को कि हाइड्रोजन के अंदर हमने देखा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है. तो पहले आइसोटोप के अंदर हमारे पास 1 प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं था. ठीक है, दूसरे आइसोटोप के अंदर 1 प्रोटॉन था और 1 न्यूट्रॉन था. और तीसरे आइसोटोप के अंदर 1 हमारे पास प्रोटॉन था और 2 हमारे पास न्यूट्रॉन थे. ठीक है. सिमिलरली हमने क्लोरीन का डिस्कस किया कि क्लोरीन के अंदर क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है. ठीक है, और क्लोरीन 35 है. क्लोरीन 35 के अंदर प्रोटॉन का नंबर 17 होता है और न्यूट्रॉन का नंबर 18 होता है. क्लोरीन 37 में प्रोटॉन का नंबर 17 होता है लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका नंबर 20 हो जाता है.
ठीक है। सिमिलरली हमने कार्बन में डिस्कस किया, कार्बन हमारे पास जो है कार्बन 12, 13 एंड 14। कार्बन 12 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। ठीक है। कार्बन 13 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो जाते हैं। और कार्बन 14 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 8 हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे। ये हमने डिस्कस किया। हो मेरा एनी प्रॉब्लम नाउ? गुड। सो now moving toward the last one, we are having the deadly elements, उनको डिस्कस करते हैं and then हम लोग ओके ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक हमारे पास है मटेरियल प्रॉपर्टीज की, दैट इज द ग्रुप 7 एलिमेंट्स। 6.8 द ग्रुप 7 एलिमेंट्स। ओके, द ग्रुप 7 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड डेडली एलिमेंट्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड हेलोजेंस। हम इनको हेलोजेंस भी कहते हैं और इनको हम डेडली एलिमेंट्स भी कहते हैं। Why we call them deadly elements? We call them deadly elements because they can be dangerous. Like for example, chlorine. Chlorine is a member of group 7. Okay, it is a member of halogen and it has killed almost 5,000 people in the First World War. ये एक गैस है, ठीक है। क्लोरीन एक गैस की शक्ल में प्रेजेंट होता है और ये पॉइजनस गैस है। अगर आप इसको इनहेल करते हो तो इससे इंसान की डेथ हो सकती है अगर ज्यादा क्वांटिटी में इसको इनहेल किया जाए, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया था और तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोगों को इसने जो है वो किल किया था। इससे लोगों की डेथ हुई थी। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट नंबर पे आ जाए फ्लोरीन पे, तो फ्लोरीन भी पॉइजनस गैस है, पॉइजनस लिक्विड भी हो सकता है और ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो उनको जहरीला कर सकता है या उसमें जहर जो है वो फैला सकता है उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे जो है ये चारों जो है ये हेलोजेंस है और ये चारों जो है ये बैक्टीरिया को मार सकते हैं, लेकिन किल बैक्टीरिया एज वेल। ठीक है। अच्छा, ये तो इसके डेडली इफेक्ट्स हो गए, यानी ये बड़े खतरनाक हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ इससे हो सकती है। Let's see some of the positive effects of these elements as well. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डेडली है। डेडली ये उस वक्त होंगे जब ये ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाएंगे, but when they are used in limited quantity they can save lives as well. Like for example, chlorine and its compound can be used to destroy viruses and bacteria, okay, that is present in water, and that water can be made you can say safe for drinking. ओके, नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन अगर आप जब जाते हो पिकनिक वगैरह मनाने के लिए तो इन द स्विमिंग पूल्स वी आल्सो यूज क्लोरीन। तो वहां भी क्लोरीन इस्तेमाल होता है पानी के अंदर, सो दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, एनी काइंड ऑफ वायरसेस प्रेजेंट दैट कैन इन्फेक्ट द ह्यूमन बॉडी, दे शुड बी किल्ड। तो तब इंसान वहां पर नहाए तो उससे उनको वायरस जो है वो कन्वर्ट ना हो। ठीक है। पीने के पानी में इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी को हम इस्तेमाल करते हैं सो दैट उस पानी के अंदर अगर कोई वायरस प्रेजेंट है, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसको मार दिया जाए और फिर वो पानी हमारे पीने के लायक हो जाए। तो उसको ज्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में क्लोरीन को हम जो है उसके अंदर एज अ पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। Then we are having iodine solution. Iodine solution is used as antiseptic. Antiseptic का मतलब होता है कि जो आपके जख्म बन जाते हैं, कट्स लग जाते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्लीन करते हैं ना, आयोडीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, तो वो आयोडीन से बना हुआ होता है। तो दे कैन डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया प्रेजेंट अराउंड दोस वॉन्ड्स। उस वॉन्ड्स के अगेंस्ट अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारे वॉन्ड्स क्लीन हो जाते हैं। हम उसको फिर बैंडेज करते हैं ताकि कोई भी किस्म की जो बैक्टीरिया है या वायरसेस है वो हमारे बॉडी में एंटर ना कर सके। ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है, यानी फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन द ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 7 में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इनको हम हेलोजेंस भी कहते हैं, दे आर नोन एज हेलोजेंस एज वेल। सो ये नॉर्मली जो है ये मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें गैसेस भी है, लिक्विड्स भी है और इनमें मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमने इसके कुछ इफेक्ट्स पढ़े कि क्लोरीन जो होता है वो डेंजरस भी हो सकता है, ऑन द अदर हैंड वो यूजफुल भी हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली फ्लोरीन है या आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है, ये ऑल कैन बी डेंजरस एज वेल एंड कैन ऑन द अदर हैंड बी यूजफुल एज वेल। तो आपको ये फायदा भी पहुंचाएंगे लेकिन आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ के कुछ क्वेश्चन है तो वो पहले कर ले ताकि फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लें।
Any question from anyone regarding the group 7 elements? Okay, so No, sir. let's discuss the second जो टॉपिक है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये खत्म हो जाए हमारे पास आ जाए। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट दैट ऑफ द ग्रुप 7 ट्रेंड। यानी पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या होता है, यानी इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो नंबर 1, दे आर नॉन मेटल्स। ठीक है, ये जो है क्या है हमारे पास, ये नॉन मेटल्स है। पहली प्रॉपर्टीज की है, ये नॉन मेटल है। सेकेंडली, नॉन मेटल्स है तो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल। ना ये हीट कंडक्ट कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये नॉन मेटल्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो इनकी होती है वो बहुत लो होती है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। मेटल्स के मुकाबले में जाहिर सी बात है मेटल्स हार्ड होते हैं, लस्टर होते हैं, तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। लेकिन जो हमारे पास हेलोजेंस है, ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स है नॉन मेटल्स है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाले शेल के अंदर आखिरी शेल में इनके 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम ग्रुप 7 में रखते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो जो सबसे बाहर वाला शेल होगा या सबसे बाहर वाला ऑर्बिट जो होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट ग्रुप 7 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो उसका मतलब ये एलिमेंट ग्रुप 6 को बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से अगर उसमें 5 हो गए तो ग्रुप 5 को बिलोंग करते हैं। अगर उसमें 4 हुए तो ग्रुप 4 को बिलोंग करते हैं। अगर उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 3। इफ इट्स लास्ट शेल contain 2 electron, it means they belong to group 2. And if its outermost shell contain only 1 electron, it means that they belong to group 1. So periodic table में total 8 groups होते हैं। ठीक है, और वो हम इसी बेस पर जो है डिवाइड करते हैं कि अगर आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 8 या 7 है या 8 है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 7 का एलिमेंट है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 8 का एलिमेंट है। सो दिस इज हाउ वी मेक द ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आप उसको काउंट करेंगे आउटर मोस्ट शेल के, और इसी बेस पे आप उसको एक ग्रुप कहोगे कि ये इस ग्रुप का एलिमेंट है, ये इस ग्रुप का एलिमेंट है। तो टोटल 8 ग्रुप होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो 1 से लेकर 8 तक हमारे पास कोई भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? They exist as molecules, as we earlier discussed as well, that these elements cannot be existed in atomic form. ये single Cl नहीं हो सकता, Br नहीं हो सकता, F नहीं हो सकता, I नहीं हो सकता। They will be present in Cl2, Br2, F2, I2। यानी 2 elements combine होंगे, इसके 2 atoms combine होंगे, molecule में present होंगे, atomic form में नहीं होंगे। A single element cannot be present, a single atom cannot be present, 2 of its atoms are going to combine together so that they become stable। अगर ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में होंगे तो ये स्टेबल नहीं होंगे, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ 2। आई होप नाउ कि ट्रेंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीरियोडिक टेबल इसके हेलोजेंस के। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नाउ यू कैन आस्क व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू हैव। Now any problem? जी पुअर कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि ये नॉन मेटल्स होते हैं। सो नॉन मेटल्स आर नॉर्मली पुअर कंडक्टर। ओके, यानी वो हीट नहीं पास करते, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। अगर ये मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स होते तो फिर ये क्या करते हैं, ये हीट को भी पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करते हैं। सर किसी भी ग्रुप में जैसे अगर 8 के ग्रुप में सिर्फ 8 वाले आएंगे कि 7 वाले भी आ सकते हैं, 6 वाले भी आ सकते हैं? 8 के ग्रुप में सिर्फ 8 वाले आएंगे, 7 के ग्रुप में 7 वाले आएंगे, 6 के ग्रुप में 6 वाले आएंगे। यही तो पीरियोडिक टेबल है, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आखिरी शेल को आप देखेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और लास्ट शेल देखेंगे, अगर लास्ट शेल में उसके जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब है वो 8 ग्रुप का एलिमेंट है, आप उसको 8 ग्रुप में रखोगे। अगर उसके आखिरी शेल में 6 है तो वो 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप उसको 6 ग्रुप में रखोगे, एक दूसरे में शफल नहीं कर सकते हो। ठीक है जी सर, समझ गई। कितने
कितने एलिमेंट्स होते हैं? सॉरी सर ग्रुप 7 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? आपकी आवाज कट गई, दोबारा से क्वेश्चन करें। सर ग्रुप 7 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप 6 में, ग्रुप 7 में। ग्रुप 7 में टोटल 5 एलिमेंट है बेटा, टोटल 5 एलिमेंट है ग्रुप 7 में। सर याद करने पड़ेंगे कि 7 ग्रुप में कितने, 8 ग्रुप में 5 में, ऐसे याद करने नहीं, पड़ेंगे नहीं, कितने। नहीं, आपको अभी आप ग्रुप 7 ही पढ़ रहे हो ना, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के नाम बताए हुए क्वेश्चन दिया था मैंने, व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 7। तो आपने अभी ग्रुप 7 को ही देखना है, अभी तो आपने ग्रुप 2 पढ़ा ही नहीं है, ग्रुप 3 पढ़ा नहीं है, 4 पढ़ा ही नहीं है, तो अब क्यों याद करोगे उसको? सर ग्रुप 7 तो याद करें ना। हाँ, ग्रुप 7 डेफिनेटली, उसका क्वेश्चन लिखवाया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। 5 नाम है उसके अंदर, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, ये 5 नाम है, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है क्वेश्चन, तो आप वो डेफिनेटली क्वेश्चन याद करोगे आप। क्लियर? Is it clear to all of you? Okay, good. Yes sir. Good, good. Let's see the last now. Okay, this is basically the reaction of the group 7 element. यानी group 7 element के अंदर यह मैंने आपको वीडियो के थ्रू भी दिखाया था कि किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपने लेबोरेटरी में क्लोरीन गैस बनाना है या ब्रोमीन बनाना है, तो आपको उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं और आप किस तरह से उसको बना सकते हो। हमने शुरू में डिस्कस किया कि ये एलिमेंट जो है ये डेंजरस हो सकते हैं, ये डेडली हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, जब भी आप इस गैस को बनाओगे, आप एक फ्यूम कबर्ड में इसको बनाओगे। फ्यूम कबर्ड एक ऐसा कबर्ड होता है जिसमें स्मोक एब्जॉर्ब होता है, तो जब स्मोक एब्जॉर्ब होगा, सराउंडिंग में नहीं फैलेगा, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपने आईज को प्रोटेक्ट करना है, तो कोई भी गॉगल्स आप इस्तेमाल करें, ग्लासेस इस्तेमाल करें, ताकि आपकी आईज जो है उसके अंदर ये गैस ना जाए और आपको इन्फेक्ट ना करे, ठीक है। आप फेस मास्क भी इस्तेमाल करें फॉर सेफ्टी पर्पस, क्योंकि ये जो फ्यूम्स होते हैं, ये फ्यूम्स आपके नाक में जा सकते हैं, आपके मुंह में जा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, देयर वेरी मच टॉक्सिक गैसेस, सो आपने बहुत प्रोटेक्टिवली इसको इस्तेमाल करना है, इसकी रिएक्शन करवाने हैं आपने। फिर ब्रोमीन लिक्विड है हमारे पास, अगर आप ब्रोमीन लिक्विड बनाओगे लेबोरेटरी में या इसको इस्तेमाल करोगे, तो याद रखिएगा ब्रोमीन लिक्विड जो है वो क्लोरीन से ज्यादा टॉक्सिक होता है। ज्यादा टॉक्सिक का मतलब ये है कि ये जो है उससे ज्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है, और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब ये है कि अगर आपके स्किन के ऊपर लग जाए तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके स्किन के ऊपर रिएक्शन करेगा, ठीक है, और आपके स्किन को डैमेज करेगा, तो इसलिए ये बड़े खतरनाक होता है। अब इसको यूज करने के लिए आप अगेन क्या करोगे, या इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप फ्यूम कबर्ड इस्तेमाल करोगे ताकि उसके फ्यूम्स जो है वो एब्जॉर्ब हो सके और वो आप तक ना आ सके। सेकेंडली आप क्या करोगे, आप आई प्रोटेक्शन इस्तेमाल करोगे, डेफिनेटली आप ग्लासेस का इस्तेमाल करोगे ताकि आपके आईज जो है वो खराब ना हो। आप ग्लव्स इस्तेमाल करोगे ताकि अगर आपके हाथ के ऊपर ये गिर भी जाए तो ऐसा ना हो कि आपके स्किन के ऊपर आ जाए, क्योंकि ये करोसिव है, रिएक्टिव है, आपके स्किन के ऊपर रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड है, लिक्विड के लिए अगर आप जो है फेस मास्क इस्तेमाल ना भी कर लो तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आएगा आपके लिए कि आप उसके अपने आप को बचा पाओगे। तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ व्हाइल वी आर वर्किंग विद दीस काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप ग्रुप 7 एलिमेंट्स से पीरियोडिक टेबल के लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, जैसे आप क्लास 9 में जाके कुछ ना कुछ चीजें करोगे, तो आपने ये एहतियात रखना है कि आपने ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, आपने लैब कोट इस्तेमाल करना है, आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स यानी ग्लासेस इस्तेमाल करनी है, आपने फेस मास्क इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये रिएक्शन बड़े खतरनाक हो सकते हैं और लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए डेडली भी साबित हो सकती है। तो इसलिए इनसे रिस्क नहीं लेना आपने, इनके रिस्क को आपने कंट्रोल करना है, इनको कवर करना है आपने, और कवर करने के लिए आपने ये डिफरेंट काइंड के पर जो चीज़ें हैं उनके आपने जो है उस पर अपने काम करना है, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। आखिरी चीज़ है, ये दिखा दूँ मैं, उसके बाद क्वेश्चन लेता हूँ आप लोग के। ये है कुछ रिएक्शंस, ठीक है, आयरन के रिएक्शंस दिखा
रहे हैं हमारे पास, वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन ऑफ आयरन विद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, फर्स्ट आयरन एंड क्लोरीन, व्हेन वी रिएक्ट आयरन क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस में अगर हम आयरन के को जो है वो जला के उसके अंदर रखे तो वो क्या करेगा, बहुत तेज रिएक्शन शो करेगा, एक बहुत फास्ट रिएक्शन शो होगा, ब्राइट फ्लेम्स जो है वो जलेंगे और एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ब्राउन लिक्विड की सॉलिड की शक्ल में आएगा, यानी उस गैस जार के अंदर ब्राउन सॉलिड आपके पास आ जाएगा। इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, आयरन प्लस क्लोरीन, आयरन और क्लोरीन को आपने मिलाया, जब आयरन एंड क्लोरीन को मिलाया तो बना क्या आपके पास, आयरन क्लोराइड बना आपके पास। ये रिएक्शंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि भाई आयरन के रिएक्शन लिखो क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। सो आयरन जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो उससे क्या बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है। सिमिलरली आयरन जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ तो ये रिएक्शन मुकाबला क्लोरीन क्या, ये थोड़ा सा लो रिएक्शन होता है, बहुत तेज रिएक्शन नहीं होता, और ये रिएक्शन जो ये क्या बनाता है, आयरन ब्रोमाइड बनाता है। सो आयरन प्लस ब्रोमीन इट मेक्स आयरन ब्रोमाइड। तीसरा आप देखोगे आयोडीन के साथ, ठीक है, आयोडीन और आयरन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसके जो रिएक्शन है ये ऊपर दोनों से स्लो होता है, यानी क्लोरीन से भी स्लो होता है और ब्रोमीन से भी स्लो होता है, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, आयरन आयोडाइड बनता है। आयरन प्लस आयोडीन इट फॉर्म्स आयरन आयोडाइड। आयोडीन का क्या इस्तेमाल आप करोगे अपने लेबोरेटरी के अंदर, क्लास 9 में आप आयोडीन को यूज करोगे, तो आयोडीन का रिएक्शन बहुत तेज नहीं होता, क्लोरीन को भी इस्तेमाल करोगे, ब्रोमीन को भी इस्तेमाल करोगे, तो आप तीनों के रिजल्ट्स देख लोगे, ये कलर्ड सॉल्ट्स कहलाते हैं। यू विल सी देम के दे हैव डिफरेंट कलर्स, क्लोरीन का अलग कलर होगा, ब्रोमीन का अलग कलर होगा, आयोडीन का अलग कलर होगा। सो दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स व्हिच यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन योर लेबोरेटरी व्हाइल यू गो टू क्लास 9। आपकी क्लास 9 के अंदर आपके लैब में ये चीजें हैं, आपको ये परफॉर्म करनी होगी वहां पर। तो ये जो आप यहाँ से थोड़ा बहुत सीख के जाते हो वहां पर आपको जाके डिटेल में बताना पड़ता है, वहां आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, डिटेल में दिखाते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आपकी जो क्वेरीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जब आप लाइव देखते हो तो ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व होती है। ठीक है सर, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, ये क्या नाम है, क्लोरीन और ये सब गैसेस के एक्सपेरिमेंट? क्लास 9 में हम लोग इनको करते हैं, ठीक है, क्लास 9 में इसको करते हैं, लेकिन क्लास 8 में इसको नहीं करते। वी विल सी दैट इंशाल्लाह, अगर पॉसिबल हुआ तो हम क्लास 8 में कुछ ना कुछ इसमें कर लेंगे, लेकिन हम सारे नहीं कर सकते क्योंकि ये डेडली होते हैं, खतरनाक होते हैं, और ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए जो है ये मसला हो सकता है। तो 9 क्लास में फिर हम लोग ये करते हैं कि ग्रुप्स के अंदर जो है, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर हम ये करवा रहे होते हैं, ठीक है, बट विल सी इंशाल्लाह, जस्ट रिज्यूम, स्कूल रिज्यूम हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, हम वर्कबुक कब करेंगे?